यीशु तन मन रंग अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू जीसस बोलते हुए लीजिए अपने हाथों को हिलाएं और बोले थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर आज मैं आपकी पवित्र हुजूरी में अपने आप को खाली कर देता हूं ताकि आप मुझे अपनी सामर्थ से, अपने मसा से, अभिषेक से मुझे भर सके। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। तारीफ करें तालियों के साथ लीजिए और आइए सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं, गवाहियां सुने, परमेश्वर की महिमा करते जाएं क्योंकि खुदा ने बड़े और अद्भुत काम लोगों के जीवन में किए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ओके, 14 मई 2025 को आपको अचानक से आप बीमार होना शुरू हुए थे। हाँ जी, क्या हुआ था आप उसके बारे में ब्रदर जी? बताएं। मेरा अचानक ही बीपी वध गया, 200-250 हो गया सीगा। इस बीपी ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਾਜੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। पर प्रभु ने और इस चीज का जो अटैक था, अटैक की वजह से आपकी आंखों के ऊपर भी इसका असर पड़ा। हाँ जी, आपके जीभ के ऊपर, बोलने के ऊपर भी इसका असर पड़ा। हाँ जी, और बॉडी की जो राइट साइड थी वो पैरालाइज हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। ना बोला जा रहा था, ना चला जा रहा था। हाँ आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो गया था। हाँ जी, मैंने तो धुंधला दे। एक दो डॉक्टर और भी हाँ जी, 1-2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰੂਸਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰੂਸਡ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਜੂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं इस गवाही ਲਈ परमेश्वर ਦਾ और परमेश्वर ਦੀ दासी ਦਾ धन्यवाद करती हूं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। बटाला क्रूसेड में जो परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रार्थना को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार देखते हैं। शर्मिंदगी वाले रोगों को डांटता हूं, तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाते रहें, सारी बीमारियां तुम्हें छोड़ के चली जाएं। मैं कमांड करता हूं सब तरह के रोग तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे घराने को, तुम्हारी फैमिली को छोड़ के जाते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और
जब इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इन्होंने रिसीव किया, उसके बाद आपने अपने आप को चेक करके देखा, आप बिल्कुल ठीक हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर जी, आपसे मैं बिल्कुल ठीक सी। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ब्रदर जी, मैंने राइट चलने साइड जो पैरालाइज बिल्कुल था, ठीक सी, मैं बिल्कुल ठीक है। उस दिन तो मैं आज 10 महीने बिल्कुल ठीक हाँ। और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है? नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं मैनू पड़ी, मेरे परमेश्वर ने ठीक किया। तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलते हैं सब कुछ हीलिंग के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हुए। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जिस तरह बटाला क्रूसेड में परमेश्वर ने इस बहन को छुआ और हील किया। आप जानते कि इस हफ्ते जो रांची झारखंड में एक बहुत ही बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है, परमेश्वर के दास दासी वहां पे जा रहे हैं। तो हमारा ये विश्वास है कि खुदावंद बड़े काम करेगा, लोगों की जिंदगियां चेंज होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जितने लोग आप इस इवेंजलिज्म के तौर के ऊपर इन पैम्फलेट्स को देंगे, या आप सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो उसके ऊपर भी आप झारखंड के इनविटेशन के लिए लोगों को जरूर इनवाइट करें, उनको गाइड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्रूसेड को अटेंड करें और खुदा का आत्मा उनको छुए। तो परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, खुदावंद के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर जी मेरा नाम रिवका आ, पिंड सैद मुबारक दे ही रहने वाले हैं, बटाले तो आए अंबरसर रोड तो। ओके, क्या गवाही है आपकी, बताएं आप। ब्रदर जी मेरे बेटे ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। मतलब इसकी हालत कैसी थी, होता क्या था इसके साथ? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਖੜਨਾ ਆਪ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖੜਨਾ ਤੇ मैं बहुत ज्यादा परेशान हाँ। तो भाई आप बताएं कि आपने जब अपने बेटे की हालत को देखा कि ऐसी उसकी कंडीशन हो चुकी है, क्या मन पे बीतता था जब अपने बच्चे की ऐसी हालत को आपने देखा? तो ब्रदर मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, मैनू समझ नहीं होती मैं किथे लैके जावां। मैं कदी किसी नूं कहना, कदी किसी नूं कहना कि मैनू कोई डॉक्टर दसो मैं किथे लैके जावां, मैनू समझ नहीं होती हैगी, इन्नी यदि माड़ी कंडीशन हो चुकी सी। और जब हॉस्पिटल में लेकर गए, बच्चे के ब्रेन की स्कैनिंग हुई, एमआरआई टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और इसके ब्रेन की जो नसें हैं वो सिकुड़ चुकी हैं, ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं जी। इसका हल क्या बताया डॉक्टर से, कैसे ये ठीक हो गए? फिर ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਸੋਨਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਸਾਪਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ लाखों रुपए इसके इलाज के ऊपर लग चुके थे ऑलरेडी, जी, जी। पर हालत में सुधार कुछ भी नजर नहीं आता जी। था। इसकी डेली की लाइफ कैसी थी, घर में मतलब कैसे रहता था, कौन संभालता, देख रेख कौन करता था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। फिर परमेश्वर ने कैसे आपके बेटे को हील किया है? ऐसी कंडीशन में कैसे चंगाई मिली से? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। मैं लगातार चर्च दे विच आउंदा रहा। वैसे उस समय जब इसको ये प्रॉब्लम हुई थी, ये पूरी तरह से बेड के ऊपर था जी, मतलब अब पकड़ के इसको बाथरूम टॉयलेट तक लेके जाना पड़ता था। जी, जी। ऐसी हालत थी इसकी। जी। लेकिन जब आपने गुरदासपुर ब्रांच में जाना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, तो उसके बाद इसकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो चुका था जी। और फिर जब ये चर्च में इसको लेकर आए 18 फरवरी 2024 की मीटिंग को, परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना करी थी इनके बेटे के ऊपर। ओके, उस प्रेयर को भी हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके बेटे के ऊपर, तो क्या हुआ उसके बाद इसके जीवन में? ब्रदर जी जब ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, कोई दिक्कत नहीं ਇਹਨੂੰ आई हैगी। और उसके बाद अभी कितने समय से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? ब्रदर जी ਇਹਨੂੰ 2 साल ਤੇ 26 दिन हो चुके ने आज। कोई ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ इसका? नहीं, नहीं। कोई मेडिसिन अभी नहीं खाता है? नहीं। और बिल्कुल हील हो चुका है? जी, जी। तारीफ करें इक्लेसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें हालेलुया, ऊंची आवाज में, बीमारियां छोड़ जाती है, तारीफ करें ऊंची आवाज में। अब चलिए रखे, चलिए जाती है, कमजोरियां ऊंची आवाज में, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। आज भी जो पेशेंट्स, जो ऐसी हालत में जो लोग हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आज खुदावंद का आत्मा आपके जीवन में से उन बंधनों को, जो बीमारी का है, आज उसको तोड़ेगा। आज आप अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को रिसीव करके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। हालेलुया। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से? मेरा नाम जगमीत है। सारे कलीसिया को जैमसी, मम्मा और पापा जो कि भी जैमसी थे। कहां के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के रहने वाले। जी, सितंबर 2025 को आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, आपका यस अचानक ब्रदर, पैर फिसल गया। यस ब्रदर। क्या हुआ, आप खुल के बताएं अपनी गवाही को। मैं काम दे सिलसिले विच जम्मू गया आया सी। मैं एक प्राइवेट जॉब करदा जी। मैनू मालका ने काम दे सिलसिले विच जम्मू भेजिया सी।
ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ 3 ਜਾਂ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। और भी मेडिसिन देंदे रहे बट कोई राम नहीं सी आया। जब डॉक्टर को आपने चेक करवाया क्या Yes, बताया brother. क्या बताया डॉक्टर्स ने? उन्होंने बोला कि जो डिस्क दी हड्डी है उनदे विच गैप पै चुका है। और अब बता रहे थे कि जो मनके उसके वो भी पूरी तरह से हिल चुके हैं। यस ब्रदर। और क्या प्रॉब्लम थी? लेफ्ट लेग की नसें भी ब्लॉक हो चुकी थी और चलना फिरना बंद हो गया था और मैं पैरी पूरी तरह बेड के ऊपर ही आ गया था। और आप बता रहे थे कि आप पूरी तरह से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था आपको। हाँ जी यस ब्रदर। क्या हुआ उस टाइम, आप खुल के बताएं। उसके बाद उन्होंने मेरे को 2 दिन के लिए दाखिल किया और ट्रीटमेंट मेरा किया और ट्रीटमेंट करने के बाद भी मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और जब आपकी लेफ्ट लेग की नर्व्स पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, Yes, brother. रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो चुके थे, यस ब्रदर। फिर आप टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे? टॉयलेट बाथरूम बेल्ट के इशारे जहां फिर मेरे बच्चे मेरे को लेके जाते थे। यानी पूरी तरह से आप फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। यस ब्रदर। और मैं अकेला ही घर में कमाने वाला था और मेरा कोई भी सहारा नहीं था। और आप बता रहे थे कि लगातार मेडिसिन खाई, फिजियोथेरेपीज भी करवाई, हाँ जी यस ब्रदर। इंजेक्शन भी लगवाए। यस ब्रदर। डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि आपका ऑपरेट ही होगा, यस ब्रदर। ऑपरेट के बिना इसका कोई हल नहीं है। यस ब्रदर। लगातार मेडिसिन खा। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए हैं? 5-6 से डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यस ब्रदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे, आपका फेथ था परमेश्वर के ऊपर यस ब्रदर। कि परमेश्वर इतने लोगों को हील कर रहा है, चंगा कर रहा है, वो मुझे भी हील यस करेगा। यस ब्रदर। और फिर पूरा 23 विश्वास था परमेश्वर के ऊपर और फिर कि 23 जैसे ये लोगों को परमेश्वर चंगा कर रहा है मेरे को क्यों नहीं चंगा करेगा। और फिर 23 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। ब्रदर, जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के दास ने खुद आपकी बेल्ट को उतार दिया था। यस ब्रदर। उसके आप बाद चेक करके देखा पूरी तरह यस ब्रदर पूरी तरह चेक करके देखा, उठ के बैठ के देखा, चल के देखा, कोई बीमारी नहीं है, नहीं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहा है। आपने सुना कि डॉक्टर ने बोला था कि इसका सिर्फ ऑपरेशन ही हल है। पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सहारे जाते थे, नर्व्स ब्लॉक हो चुकी थी, टांगों की बेल्ट एक मोटी लगा दी थी, लगातार ट्रीटमेंट चला, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर ने इस भाई को छुआ, हील किया और वो रोग पूरी तरह से छोड़ के जाता रहा। परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए हालेलुया, जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम रवि है, मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। ओके, फरवरी 2025 में अचानक से आप बीमार हुए थे। हाँ जी। ओके, क्या आपकी हालत थी, क्या हुआ क्या था आपको उस समय? फरवरी 2025 को मेरे को 101 बुखार हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपको ये नॉर्मल सा बुखार है, आप दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने दवाई ली पर मेरे को कोई असर नहीं पड़ा। तो मैंने 1-2 दिन दवाई खाई, मेरे को कोई असर नहीं पड़ा। पर मैंने डॉक्टर के पास फिर गया और डॉक्टर को कहा कि मेरे को कोई असर नहीं पड़ रहा दवाई का। तो उन्होंने मेरी टैबलेट चेंज की और उन्होंने मेरे को नई टैबलेट दी और कहा आप ये खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। पर उस दवाई से मेरे को कोई असर नहीं पड़ा तो मैंने डॉक्टर चेंज किया। जब मैंने डॉक्टर चेंज किया तो सेम प्रॉब्लम मैंने वही डॉक्टर को बताई कि मेरे को 101 बुखार है और वो ठीक नहीं हो रहा है। जब मैंने ये प्रॉब्लम डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और कहा आप ये दवाई खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी बॉडी में एक इन्फेक्शन पैदा हुई और धीरे धीरे करके आपके गले के अंदर एक गांठ बननी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। और गला अंदर से स्वेल रहता था, कुछ भी खाते पीते थे तो वो गले में अटक जाता था। हाँ जी, हाँ जी। ओके, क्या इसका हल बताया था डॉक्टर ने? फिर क्या ये क्या चीज है, इसके बारे में क्या बोलते थे वो? जब मेरे गले में गांठ थी तो वो पहले छोटा सा दाना था तो मैंने उस पर गौर नहीं किया। जब वो दाना धीरे धीरे बड़ा होने लगा तब मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहता ये आपके इन्फेक्शन है, आप इसकी दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। जब मैंने डॉक्टर के दी हुई दवाई खाई वो दवाई मेरे को लगी नहीं और मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर फिर से चेंज किया और अलग दवाई ली। फिर मैंने वो दवाई खाई, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मैं एक बड़े हॉस्पिटल में गया। उस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे गर्दन के नीचे एक छोटा सा दाना है, वो दाना बहुत दर्द होता है और मेरे अंदर से मेरे को खींच पड़ती है। जब ये मैंने बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाए। जब उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए तो वो कहते आप दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। और जब सैंपल लेकर दिल्ली भेजा गया तो टेस्ट की रिपोर्ट में जब आया तो उन्होंने बताया कि गले के अंदर टीबी की रसौली बन चुकी है और ये एक बहुत बड़ी गांठ है। और लगातार दवाइयां खाई लेकिन कोई भी उसके बावजूद भी फर्क नहीं था। और ना तो आप स्टडी पे फोकस कर पाते थे, शर्मिंदगी रहती थी, गले को कवर करके रखते थे। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहे। 9 नवंबर 2025 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास से, परमेश्वर की दासी से आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसके बाद से वो रसौली जो थी गले के अंदर, गांठ जो थी टीबी की, वो अपने आप सूखनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, यस। और उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नो। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 4 महीने 6 दिन से बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ करें इक्लेसिया, जोर से हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में आज जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स, जो पत्थरियां, जो रसौलियां आपके शरीरों के अंदर है, आज जब प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे वो आपके शरीरों में से बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप हील होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत गवाही के लिए, चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से सिस्टर उषा देवी की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 14 जनवरी 2021 को इनको पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसके कारण बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और पूरी तरह से ये बेड के ऊपर जा चुके थे। और आज ये अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तो हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम उषा है, मैं अमृतसर से आई हूँ और मैं अजनाला ब्रांच से जुड़ी हूँ। सन 2021 में मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था
और उसके बाद में मेरे दोनों शोल्डर में बहुत पेन थी, बॉडी पूरी एक तरफ की रुक गई थी। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि आपकी नसों में ब्लॉक है, आपकी मांसपेशियों में जकड़न है, आपको ऐसी दवाई चलती रहेगी। उसके बाद में हम घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, मतलब कि जब भी हम रोटी बनाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होती थी, कपड़े चेंज करने में दिक्कत होती थी। रात को भी हम सोते थे तो रोते रहते थे, मतलब एक तरफ को करवट लेते थे, दोबारा फिर हम कर नहीं पाते थे। ऐसे ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, रात दिन मुझे पेन रहती थी। मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी के लिए बोला और काफ़ी सारी एक्सरसाइज बताई। पहले से सन 2019 से मैं प्रभु में थी। 31 नाइट को मैं खामरा चर्च में गई थी, उसके बाद मुझे उल्टी आई वहाँ पे और मैं आगे गवाही देने के लिए गई थी, तो पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया। उसके बाद में उस दिन से मैं पूरी तरह बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी बाजू को हिला पाती हूँ और मैं घर का काम भी कर पाती हूँ। अब मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके लिए मैं पापा जी का और मम्मा जी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। 31 दिसंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ले हैंड किया इनके ऊपर, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया जो पूरी तरह से बेड पर थे, पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। इन्होंने चेक करके देखा, रिकवरी होनी शुरू हुई और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को छू रहे, टेस्टिमनियां उनके जीवन में बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उसकी जी उठने की सामर्थ्य इस चर्च के ऊपर परमेश्वर ने अपने दास को दी है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो फिर वही जी उठने की सामर्थ्य हमको छूती है और हर हमारा मुर्दा अंग जी उठता है। जैसे परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया, हमारा विश्वास है कि जितने भी जन आज ब्रांचेस में प्रार्थना को अटेंड करेंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे, बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम नीरज है, मैं लुधियाना शहर का रहने वाला हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं 16 साल से नशे की कैद में था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, नशा मीन्स की शराब पीना। मैं बहुत सालों से शराब पी रहा था, मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि मैं शराब छोड़ दूं, मैं ड्रिंक से बाहर निकल आऊं, पर मैं शराब से निकल नहीं पा रहा था। ओके, इस नशे की शुरुआत आपके जीवन में कब हुई और कैसे हुई थी? इस नशे की जो शुरुआत थी मेरे जीवन में 2009 या 10 में फ्रेंड सर्कल के साथ 1-2 बार मैंने ड्रिंक लिया। तो वो 1-2 बार ड्रिंक लेना जो मेरे को मतलब कि छोड़ने के लिए 15-16 साल लग गए। और आपकी डेली की लाइफ कैसी थी इसकी वजह से? डेली की लाइफ ऐसी थी, जब मैं ड्यूटी से ऑफ होता था 5 बजे या 6 बजे, तो मैं घर सीधे नहीं आता था, मैं ड्रिंक करने के लिए बार या किसी भी जगह चला जाता था। ड्यूटी क्या करते थे आप? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? सीएमसी हॉस्पिटल में। क्या जॉब है आपकी वहाँ पे? मैं स्टाफ नर्स हूँ वहाँ पे। ओके, तो अच्छा, वहाँ जॉब की, उसके बाद 5 बजे जब छुट्टी हुई, फ्री हुए, तो वापस आप नशा करने के लिए चले जाते थे? जी। और ये रूटीन थी, ये डेली की लाइफ थी आपकी? जी ब्रदर। आपने कभी मन में आया नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है? क्या सोचते थे इसके बारे में? मैंने ब्रदर बहुत बार ट्राई किया, मैं संडे को चर्च भी जाता था, ट्राई करता था कि मैं वाइफ से भी शेयर करता था कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर मैं छोड़ नहीं पा रहा। जब मैं चर्च जाता था तो मेरे मन में विश्वास जागता था कि खुदा मेरे को इसमें से बाहर निकालेगा। पर जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या अकेला कहीं मार्केट में होता था तो फिर से मेरे को मतलब मन में इच्छा होती थी कि मैं ड्रिंक करूं, ऐसे मेरे को होता था। और इस वजह से पारिवारिक माहौल कैसा बन गया था? पारिवारिक माहौल बहुत खराब हो गया था, रोज लड़ाई झगड़ना, क्योंकि मेरी वाइफ रजनी मेरे को कई बार बोलती थी कि आप क्यों शराब ये छोड़ नहीं रहे, क्यों आप इसके पीछे लगे हो, आप इसको छोड़ दो, आपकी लाइफ इससे खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बाद में मेरा और बेटी का क्या होगा अगर आपकी को कुछ ऐसा हो जाता तो
तो सिस्टर आप बताएं कि उस समय घर का माहौल इस नशे की वजह से कैसा बन गया था? क्या बातचीत, क्या सोचते थे आपस में आप? रोज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, जब लोग गली में बाहर निकल निकल के सुनते थे कि इनके घर में रोज शोर ही होता रहता है, ये लड़ते ही रहते हैं, तो गली वाले भी मुझसे कहते थे तू अपने हस्बैंड से मत झगड़ा कर, ये नहीं छोड़ेगा शराब, जैसी ये पीता है इसकी मौत ही है इसका अंत। क्योंकि तो 15-16 साल ऑलरेडी हो ही चुके थे इस चीज हाँ में, जी, और इस वजह से लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे। हाँ जी, इस चीज के बारे में आपके परिवार को, आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को, ऑलमोस्ट सबको मालूम था। हाँ जी। ओके भाई, आप बताएं कि इसकी वजह से आपका 4-5 बार एक्सीडेंट भी हुआ हाँ जी ब्रदर, नशे की वजह से। जी मैं ब्रदर एक बार अपनी एक्टिवा से, मैंने उस दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं सुबह से ड्रिंक करने चला गया, तो मैं 1-1.5 बॉटल मैंने पी हुई थी, तो एक्टिवा से जा रहा था और एक हाथ से मैं एक्टिवा ड्राइव कर रहा था और एक हाथ से मैंने कान को फोन लगाया हुआ था। उसी वक्त आगे से बाइक आया, उससे मैं हिट होके नीचे गिरा, मेरी जो ऐनक थी टूटी और मेरी आईलिड में, आंख में, पलक में चुभी तो कट लग गया। तो उस टाइम आंख मेरी जो थी मतलब फटने से बच गई बस। और नशे की वजह से 4-5 बार एक्सीडेंट हुआ और इसकी वजह से आप बीमार भी रहते थे हमेशा। जी ब्रदर, मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई शराब पीने से। एक बारी मेरी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मेरे को हार्ट वाली जो वार्ड था वहां पर मुझे एडमिट होना पड़ा। और नशे की वजह से कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया था। जी ब्रदर, कर्जा धीरे धीरे, पहले जो तो हमारी सेविंग थी वो खत्म होनी शुरू हुई, क्योंकि डेली ड्रिंक करता था मैं, मेरा जो सैलरी का 50% जो था वो शराब में, नशे में चला जाता था, और जो भी सेविंग थी मेरी वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने छोटा मोटा लोन लिया था 10,000 का, 20,000 का, वो लोन जो था वो धीरे धीरे लाखों में तब्दील हो गया और वो कर्जा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बहुत बढ़ रहा था। और लोगों ने भी आपको नशेड़ी कहना, शराबी कहना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर, शराब भी, मेरे को लोग जो रिश्तेदार थे, मेरे सगे संबंधी थे, उन्होंने मेरे को बातचीत करना बंद कर दिया, मुझको कॉल नहीं करते थे, मैं उनसे बात नहीं करता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो मेरे रिश्ते थे वो खराब होने शुरू हो गए थे। ओके, तो परमेश्वर ने फिर कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको डिलीवरेंस मिली इन चीजों से? मैं ब्रदर जी एक बार सितंबर मंथ में 2025 में बहुत ड्रिंक की हुई थी मैंने, तो मैं फोन चला रहा था अपना, तो पास्टर अंकुर जी का, अपोस्टल अंकुर जी का मैं सरमन सुन रहा था, तो मैंने जो उस दिन नशे में सरमन सुना तो वो मेरे मन को इतना छुआ, तो मैंने सोचा जब मैं मेरा नशा उतर जाएगा या नेक्स्ट डे, मैं ये सरमन को सेव कर लिया, मैंने नेक्स्ट मैं फिर सुनूंगा। तो नेक्स्ट डे मैंने वो सरमन पूरा सुना। उस दिन जो सरमन मैंने सुना वो मेरे मन को इतना छुआ, मेरे मन को लग गया कि उस दिन मेरे को लगा कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी नशा किया ही नहीं, मैंने ये महसूस किया। उस सितंबर मंथ से मैंने अभी तक एक शराब की बूंद तक नहीं पी, जहां मैं एक दिन में 1.5 बोतल, 1 बोतल, कई बारी 2-2 बोतल भी शराब पी जाता था। अभी कितने महीने हो चुके कि बिल्कुल भी नशा नहीं किया आपने? अभी ब्रदर जी मेरे को 7-8 महीने हो चुके हैं कि मैंने बिल्कुल नशा नहीं किया। और उस समय की लाइफ और अब की लाइफ में क्या अंतर है? अभी बहुत अंतर है ब्रदर जी। उस समय मैं टेंशन में रहता था, जब तो मैं ड्रिंक कर लेता था तो मैं रिलैक्स रहता था, अगले दिन मेरे को यह फील होता था कि मैंने ड्रिंक क्यों की, मैंने शराब क्यों की, पर ऐसे ही चलता रहता था मेरी लाइफ में। और अभी कोई तलब नहीं नशे की? कोई नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई नशा जीवन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पूरी रीति के साथ आप आजाद हो चुके हैं। मैरिड लाइफ आपकी ब्लेस्ड है, पारिवारिक लाइफ ब्लेस्ड है, चारों दिशाओं से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया। बिल्कुल ब्रदर जी, बहुत आशीषित किया परमेश्वर ने हमें। थैंक यू जीसस। तारीफ करें इक्लेसिया जोर से तालियों के साथ इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब आज जितने जन ऐसे लोग यहाँ पे, परिवार ऐसे मौजूद है यहाँ पे जो नशे की हालत में आपका जीवन जो था वो बीता जा रहा था, या आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे वो नशा, उसकी दुष्ट आत्मा जो है आज आपके शरीरों को छोड़ के जाएगी, और आज उस नशे का आखिरी दिन है आपके जीवन में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आप अपनी डिलीवरेंस को, अपने छुटकारे को, अपनी आजादी को लेके वापिस जाओगे। अगर आप विश्वास करते तो ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। छुटकारा
आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? मेरा नाम सीमा है और मैं जम्मू से आई हुई हूँ जी 2016 में आपकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद आपके 2 बेटियां हुई। क्या टेस्ट मनी है, क्या आप चाहते थे? मेरी शादी 2019 में हुई थी और शादी के बाद हम बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे और उसके बाद जब हमें बेबी कंसीव हुआ 2020 में, और जब बेबी कंसीव होने के बाद मुझे सपने आने लगे। सपनों में मुझे नाग दिखाई देते थे और पानी दिखाई देता था। जब मैं सोती थी और सोते टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है। और उसके बाद जब मुझे 3 मंथ हो चुके थे प्रेगनेंसी में, तो मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हमने फिर से बेबी प्लानिंग की और बेबी प्लानिंग 2021 में मुझे फिर से बेबी कंसीव हुआ। और बेबी कंसीव होने के बाद सेम ऐसे ही ड्रीम मुझे फिर से आए और फिर से 3 मंथ के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हम फिर से प्लानिंग करने लगे कि हमें अब दोबारा से बेबी हो, पर हमें बेबी नहीं होता था। हम इतने परेशान हो चुके थे कि हमें अब बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना इनको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। 2022 भी हो चुका था, हम बड़े परेशान रहते थे। अगर हम किसी से बात करते थे कि हमें बेबी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझे अन्य जगह जाने के लिए बोला। मैं बहुत सी अन्य जगह पे गई, जैसा जैसा उन्होंने बताया हमने वैसा वैसा ही किया, पर तब भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम दोनों इतने रोते रहते थे कि हम क्या करें कि हमें बेबी हो। हमें जो इनकी शादी मेरे साथ हुई थी, उनको 2 बेबी भी हो चुके थे, पर मुझे कोई भी बेबी नहीं हो रहा था। हम इतने निराश हो चुके थे कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, रोते ही रहते थे। अगर हम दुखी होते तो बाहर कहीं चले जाते थे, तो लोग तब भी बातें करते थे कि ये घूमने चले जाते हैं, क्यों बेबी नहीं कर सकते। हम जब सुनते थे तो हमारी इतनी उम्मीद टूटती थी और हम इतना रोते थे, इतने निराश हो चुके थे कि हमें क्यों नहीं बेबी हो रहा है। हमारे पास सब कुछ है, बस एक बच्चे की कमी है। हमने कहा अब हम एडॉप्ट कर लेते हैं, कोई हमसे पैसे ले और हमें बेबी देते, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा हम IVF करवाते हैं और IVF के लिए सोचते हैं। तो हमने IVF के लिए सोचा, तो इतनी देर में हमें हमारे भैया और भाभी ने कहा कि जब सिस्टर आपके बेबी नहीं हो रहा था, जी। तो आप बता रहे थे कि आप उम्मीद छोड़ चुके थे जी कि पता नहीं बेबी होगा या नहीं होगा। जी। जब लोगों के पास आप जाते थे, जब लोग आपसे मिलते थे, जब वो बेबी के बारे में पूछते, तो कैसा फील होता था आपको? ब्रदर, बहुत ही दुख भरा फील होता था कि हम भी अपने बेबी को हाथों में उठाएं, उसे प्यार करें जैसे सभी करते हैं, पर हमें बेबी नहीं हो रहा था। हम बहुत ज्यादा निराश थे। जब हमें हमारे भैया और भाभी ने इस खामरा चर्च के लिए बताया और बोला कि आप ऑनलाइन मीटिंग देखिए और उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे प्रभु की महिमा होती है। हमने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू की, जिससे हमने देखा कि बेबीज होते हैं, गवाहियाँ होती हैं, कैसे कैसे कितने सालों के बाद बेबी होते हैं। तो हमने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, हमारा फेथ बढ़ा। फिर उसके बाद हमने चर्च आए, हमने लाइव वीडियोस देखी, लाइव प्रभु की महिमा देखी, हमने बच्चों की गवाहियाँ सुनी। हमने कहा प्रभु अगर तू सबको दे रहा है तो अब मुझे भी दे के भेजना, मैं खाली नहीं जाऊंगी। मैंने ओ प्रभु से रो रो के प्रार्थना की। उसके बाद हमने ट्यूसडे को यहाँ पे आए,
हमारी काउंसलिंग हुई। हमने उनको बताया कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई। उन्होंने हमारा विश्वास देखा, हमें प्रभु की महिमा के बारे में समझाया और हमने अपना वाइल्ड कार्ड बनाया। उसके बाद हमारा ले हैंड हुआ। प्रभु की दासी ने 11 जून 2023 में हमारा ले हैंड किया। और उस ले हैंड को आपने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। जी ब्रदर। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला। और सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस टाइम में क्या महसूस हुआ आपको? जब प्रभु की दासी ने ले हैंड प्रार्थना हमारे ऊपर की तो हमें ठंडक सी महसूस हुई। और जब हमने आंखें बंद करके उन ठंडक को महसूस किया और परमेश्वर के वर्ड मेरे कानों में आए कि आज की डेट और अगले महीने की डेट को याद रखना। और उसी डेट पर मैंने फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। और परमेश्वर की महिमा मैं आज पूरी दुनिया को दिखाने आई हूँ अपने बच्ची के साथ। और उसके बाद, उस ले हैंड के बाद, वो शैतानी अटैक पूरी तरह से बंद हुए। पूरी तरह से बंद हो चुके। और मुझे परमेश्वर मिलते थे, पापा जी मिलते थे सपनों में कि वो मेरे गोद में बच्चा दे रहे हैं और मैं बच्चे को अपने घर पे अपने साथ लेके जा रही हूँ। और बेटी के साथ आज मैं स्कूल पर खड़ी हूँ। 5 साल के बाद प्रभु ने अपनी महिमा में मुझे चुना और मेरी बेटी को देखा। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा शाफी बचाने वाला जिंदा है, ओ यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से। और उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया। बेटी के साथ ब्लेस, बेटी के साथ ब्लेस किया है, जो मुझे 5 साल के बाद प्रभु ने इतनी ब्लेसिंग बेटी दी है जो मुझे परमेश्वर की ओर से फल है। और उसके नेक्स्ट मार्च 2025 में आप प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी को कंसीव किया। उसके बाद क्या हुआ फिर? ब्रदर, उसके 1 साल बाद मैंने फिर से बेबी कंसीव किया और मुझे डॉक्टर के पास गई जिसमें मेरा 3rd स्कैन हुआ एंटी और एनबी में। उसमें उन्होंने बताया कि आपके बेबी को प्रॉब्लम है और आप इस बेबी को एबॉर्शन करवा लीजिए क्योंकि ये बेबी आगे जाके ठीक नहीं होगा, ये एबनॉर्मल पैदा होगा और इसकी जो लाइफ है वो 10-11 साल ही होगी। मैंने रोने लगी। मैंने कहा नहीं, ये मेरी प्रभु का गर्भ का फल है क्योंकि उसके वचन में लिखा गया है लड़के यहोवा के दिए हुए पाक से हैं, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है और मैं एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं बेबी को कंसीव रखूंगी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा आप एक टेस्ट है वो लुधियाने डीएमसी में करवाइए। हम लुधियाने डीएमसी में टेस्ट करवाने के लिए आ रहे थे। उस दिन संडे की मीटिंग थी 8 जून 2025 की, जिसमें ऑयल मीटिंग थी। मैंने कहा परमेश्वर मैं आपके भवन से होके जाऊंगी टेस्ट के लिए और मैं यहाँ पे आई, मुझे ऑयल दिया गया। मैंने उस ऑयल को अप्लाई किया और पूरे विश्वास के साथ अप्लाई किया कि प्रभु मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। हालेलुया। और उसके बाद आपने रिपोर्ट्स करवाई, रिपोर्ट्स में क्या आया? जब मैंने ये टेस्ट करवाया 15 दिन के बाद ऑनलाइन एक रिपोर्ट आई जो नॉर्मल थी
और फिर एक 25 दिन के बाद नॉर्मल रिपोर्ट फिर से आई और आज मैं बेबी बॉय के साथ इस प्रभु के पुलपट पे खड़ी होके गवाही दे रही हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि ये पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे कि कभी भी इनके बेबी होगा, लेकिन जैसे ही ये परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर ने इनकी आस को टूटने नहीं दिया, बल्कि डबल गवाहियों के साथ, डबल ब्लेसिंग्स के साथ इनको खड़ा किया। उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। से अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंत में तेरी आस ना टूटेगी। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलजीत और मैं ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡੈਵਲਿਸ਼ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੈਵਲਿਸ਼ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ अन्य जगह ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी सी, टूट चुकी सी। और उसमें मैं हमेशा सपनों में दुष्ट आत्माएं आपको आवाज लगाती थी। हाँ जी, आवाज भी लगाती और मुझे ब्लैक परछाई भी दिखती थी और मुझे बोलती थी कि तुझे बेटा नहीं होने दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा टुट चुकी सी भी, बहुत ज़्यादा रोंदी रहती सी, हमेशा ही डिप्रैस। एक बार मैं छत तो छाल मार के भी मरन की कोशिश की थी और दूसरी बार ब्रदर मैं गोलियां खाने की भी कोशिश की अपने आप नूं। मेरी आस उम्मीद बिल्कुल टुट चुकी सी कि मैं जिंदा नहीं रवांगी। मैं हमेशा यही सोचती रहिंदी हुंदी सी। उस तो बाद मेरी भरजाई आ ताए दी नौं मेरी, उन्होंने मैंने परमेश्वर के बारे दस्या और मैं फस्ट टाइम कांबड़ा चर्च की ब्रांच ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ दे विच गई और मैं जब मीटिंग अटेंड की ना, टेस्टमनी नूं सुन के मेरा इन्ना परमेश्वर ते विश्वास वध गया, मेरे मन नूं सकून मिलिया जो 10 साल दे विच मैनूं कदी किते सकून नहीं सी मिलिया। परमेश्वर ने मैनूं शांति दित्ती। मैं उस दिन तो मेरा इन्ना विश्वास वध गया कि मैनूं बचाउण वाला इक्को एक यीशु मसीह है जो मैनूं बचाएगा। और 2024 दे विच 25 दिसंबर 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ। ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2025 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। Thank you Jesus, हालेलुया, हालेलुया। और जब आपने 25 दिसंबर 2024 की मीटिंग को जो अटेंड किया था जिसमें परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी, हाँ जी, उस प्रेयर को जब आपने रिसीव किया उसके बाद आपको उल्टियां आई, हाँ जी, वॉमिटिंग्स वॉमिटिंग आई सी और ब्रांच वो दे सारा विच। शैतान का प्रभाव खत्म हुआ, हाँ जी। दुष्ट आत्माएं छोड़ के गई। हाँ जी, मैं उसके बाद बिल्कुल आजाद हाँ। कोई जो शैतानी आवाजें आती थी वो टोटली नो, बंद हो मैं चुकी थी। बिल्कुल आजाद हाँ। मेरी लाइफ बहुत हैप्पी है। मैं अपने हस्बैंड नाल, अपनी बेटियां नाल, अपने डैनियल नाल बहुत खुश हाँ। मैं खुदा दा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा है।
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡੈਨੀਅਲ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬॉय ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। हालेलुया। आज जितने परिवार ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं, जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, वो शर्मिंदगियां आज आपके जीवनों में से सदा के लिए निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। और हर एक अटैक जो शैतान ने किया है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर, आज वो सारे अटैक खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपनी बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मुंबई चर्च ब्रांच से सिस्टर सानू गुप्ता की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 20 साल से ये बहन डिप्रेशन में थे और इतना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ चुका था कि अपने आप को रूम में बंद कर लेते थे। 2-2 हफ्ते कुछ भी खाते पीते नहीं थे और डे बाय डे ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। और आज मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं पहले कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शानू गुप्ता है, मैं नाला सुपारा से बोल रही हूँ। आज से 20 साल पहले इस गलत संगति में जाने के कारण मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। गलत सपने आते थे, मुझे सपने में सांप दिखता था, नदी तालाब दिखते थे और मैं बहुत डर जाती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे हाथ में पैरों में निशान रहते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं अपना सर दीवार में पटकती थी और मैं अपने आप को चाकू लेके मैंने अपने हाथ की नसें भी काटने की कोशिश की। खाना भी मैं नहीं खाती। खाना नहीं खाने की वजह से मेरा वजन पूरी तरह से घट चुका था। मुझे जैसे मन करता था मैं अपने आप को खत्म कर दूं पूरी तरह से। मुझे जीने की इच्छा नहीं थी। मैंने डॉक्टर को भी मेरे फैमिली में दिखाया, बहुत सारे तांत्रिक को भी दिखाया, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। फ्रेंड ने मुझे बताया अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में। गुड फ्राइडे के दिन 2024 में हेड चर्च में मैं आई और प्रभु के दासी के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। उसके बाद मुझे पूरी तरह से हल्का महसूस हुआ। मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई उसके बाद से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ दिल से। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। ये नॉर्मल टेस्टमनी नहीं है कलीसिया, ये बहुत बड़ी गवाही है। और आज का यूथ जो डिप्रेशन में डे बाय डे जाता जा रहा है, उसके लिए परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया कि परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं तो लोग जब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो हर तरह की महामारी, डिप्रेशन, हर एक तरह की दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ के जाती हैं। और आपने सुना कि इतना ज्यादा डिप्रेशन इस बहन की लाइफ में बढ़ता जा रहा था कि अपने आप को रूम में बंद कर लेते थे। 2-2 हफ्ते कुछ भी खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। डिप्रेशन पूरी तरह से इनके जीवन में बढ़ चुका था। फिर 29 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे इनके ऊपर परमेश्वर की दासी का हाथ आया और उसी समय परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, परमेश्वर ने हील किया और उस डिप्रेशन ने परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस डिप्रेशन से। और आज 1 साल 11 महीने से पूरी तरह से उस डिप्रेशन से आजाद हो रहे हैं और कोई मेडिसिन नहीं खाते, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, पूरी तरह से उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है, यूथ की लाइफ को चेंज कर रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गया बिहार चर्च ब्रांच से सिस्टर राबिता कुमारी की हमारे पास आई है। इनकी टेस्टमनी की 2021 जून में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी कंसीव किया तो प्रेगनेंसी के दौरान इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राबिता कुमारी है। मेरी मैरिज 2021 में हुई थी और जब मैं बेबी के बारे में सोचा तो मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा और 2 बेबी का डेथ हो चुका था। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका यूट्रस कमजोर है, आपको अभी बेबी नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं उम्मीद हो चुकी थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और उसके बाद कोई सिस्टर ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताई
तो मैं गया बिहार ब्रांच में आई और अपोस्टल जी के प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया। और उसके बाद तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे कोई अटैक नहीं होता था। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 9 मंथ तक संभाल कर रखा और मुझे हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इसलिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि जब भी ये बेबी कंसीव करते थे तो उसके बाद दुष्ट आत्मा के सपने अटैक इनके ऊपर होते थे, डेविलिश ड्रीम्स इन्हें आते थे और जैसे ये चेक करते थे तो वो केस पूरी तरह से खराब हो जाता था, मिसकैरेज हो जाता था। लेकिन जैसे ही उनको चर्च के बारे में बताया, चर्च में आना शुरू किया, जो अंकुर रूला मिनिस्ट्री की गया बिहार चर्च ब्रांच है उसमें जाना शुरू किया और एक दिन फिर 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने पेट के ऊपर हाथ रख के रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और प्रार्थना के अगले महीने ही नेक्स्ट मंथ ये प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इन्हें 9 मंथ संभाल कर रखा। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए, कोई डेविलिश ड्रीम नहीं हुए। परमेश्वर ने इनकी मैरिज के 3 साल बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करा, ब्लेस करा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल कहती शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए है, वो चोरी करने के लिए है। वो चोरी करने की कोशिश करता है आपके वंश को, आपके बच्चों को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, शर्मिंदगी को खत्म किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के हैं आप? मेरा नाम एकता है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। 2007 से आपके परिवार में डेथ का जो श्राप था वो काम कर रहा था। हाँ जी। आप बताएं मतलब इस चीज का क्या इफेक्ट था आपके परिवार के ऊपर? 2007 में क्या हुआ उसके बाद? मत की 7.5 साल तो साथ कि हर एक दिन डेथ हो ही जाती सी। मत की डेस्परेट साडे ते काम करती पई सी। पहला मत की मेरी सस दी हुई जी, फिर मेरे मत की सोरे दी हुई, फिर जठानी जेठ, फिर इन्ना दी हुई। मतलब जिसकी भी डेथ होती थी कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई अटैक होता था। हाँ उसके बाद से आपके परिवार में मौतें हो जा रही थी। 2007 में इनके मदर इन लॉ की ब्रेन हेमरेज के कारण और 2009 में इनके फादर इन लॉ की पेट के रोग होने के कारण और 2009 में उनकी जाके डेथ हो गई। 2 साल वो लगातार बीमार रहे। उसके बाद 2011 में आपके परिवार में किसकी डेथ हुई थी? मक्की इन्ना दी हुई सी, मेरे पति थी। ओके और ऐसे करते करते 7 परिवार के मेंबर्स की डेथ हो चुकी थी। और ऐसा ही अटैक आपके ऊपर भी होने शुरू हो चुके। हाँ जी हाँ जी। आपके साथ क्या होता था उसके बारे में जरा बताइए। मत कि मैनू भी अटैक मेरे ते होन लग पे सी ते मैनू मेरी शिकायत बहुत ही मेरी वध गई सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। और ये डर आपके मन में बैठ चुका था? हाँ जी, ये डर मेरे मन ते बैठ गया सी। और आप डॉक्टर के पास जाते थे इलाज करवाने के लिए? हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत डॉक्टरों ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਪ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ नहीं इलाज हो सकता। और इस बीमारी की हालत में आप ज्यादा टाइम बेड के ऊपर ही रहते थे? हाँ जी हाँ जी। चला फिरा नहीं जाता, घर का हाँ काम नहीं होता था? मैं चलना ही नहीं से जाना थी ब्रदर। मैं मतलब कि मेरे एक कदम ही चलना मेरा कि बहुत मुश्किल सी था। मैं कंधा फाड़ के जाना, पौड़िया बैठ के बाथरूम जानी हुंदी सी। हाँ और जी। इसी वजह से आपको हमेशा डर लगता था? हाँ परिवार जी, में हाँ ऐसा जी। हो चुका था? हाँ जी। फिर आप पहले से चर्च के साथ जुड़े थे या कब आपको पता चला चर्च के बारे में? हाँ जी, पहले भी ਅਸੀਂ जुड़े पए सी चर्च ਦੇ ਨਾਲ। मतलब कि ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ मतलब कि ਨੌ ਆਂਦੀ ਸੀ, मतलब कि ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ।
ओके, अगस्त 2021 की बात है ये। हाँ जी, हाँ जी। ओके, जब आप चर्च में आए तो जब प्रार्थना हुई परमेश्वर के दास के द्वारा, पहले उस प्रार्थना को हम देखते एक बार। मैं दमे को जाता हुआ देख रहा हूं। अगर आपको दमा है तो भागो। अगर आप खड़े रहे और आमीन बोला, ये नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं भागो, दौड़ो, जहां जगह है पीछे भागो, दौड़ो। दमा आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है राइट नाउ। उस दमे को मैं श्रापित करता हूं। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसको बाद मैनू ਏਦਾਂ ਮਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਕੀਆ। और उसके बाद फिर से मैं अपने आप नु चेक किया। मैं दौड़ के देखा, मैं बिल्कुल ही सही हो चुकी थी। कोई अस्थमा का रोग नहीं उसके बाद, नहीं जी। कोई डेथ स्प्रेड का डर नहीं नहीं जी, और ब्रदर। कम से कम 5 साल के करीब हो चुका है, पूरी तरह से आजाद मैं है। बिल्कुल ड्रीवर हूँ। तारीफ करें खुदावंद के नाम को, महिमा दें इस गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने उन बंधनों को तोड़ा, रिहाई दी, आजाद किया। तो परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम क्षमा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बहराइच जिले की। ओके, 2 जुलाई 2022 को जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद जब प्रेगनेंसी का ट्राई किया तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। हाँ डॉक्टर ने क्या बताया था, कारण क्या है इस चीज का? डॉक्टरों ने बोला कि आपके यूट्रस में खून पानी की गांठ है। और फिर मैंने दवाई भी ली, बहुत सारे जगहों पे दिखाया भी, और मतलब बहुत सारे डॉक्टरों ने दवाई भी, फिर भी कोई उपाय नहीं हुआ। और जब बेबी नहीं था तो इस चीज को आप अकेले बैठकर हमेशा सोचते रहते थे, रोते रहते थे? हाँ जी। क्या मन में आता था उस समय, क्या दिमाग में चलता रहता था आपके? हमेशा शायद मुझे बेबी कभी होगा या नहीं होगा, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अगर बेबी नहीं हुआ फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे सबको। और आसपास के लोग, रिश्तेदार लोग जो थे वो आपसे बेबी के बारे में पूछते थे? हाँ जी, हमेशा पूछते थे कि इतने साल शादी को हो गए, अभी बेबी क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता है बेबी। और इस चीज के लिए आप हमेशा परेशान रहते थे? मार्केट में जाते थे तो बच्चों के सामान को, खिलौने, कपड़े देखते थे तो हमेशा रोते रहते थे? हाँ जी। और वो मैं सोचती थी कि कब मुझे बेबी होगा, कब मैं अपने बच्चे के लिए सारी चीजें लूंगी। और हमेशा मन में नेगेटिव चीजें घूमती रहती थी, हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? यहाँ अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे आपको पता चला था? यहाँ मेरी मम्मी रहती थी जलंधर में, और फिर मैं पहली बार यहाँ जलंधर खमड़े चर्च आई, और मतलब सन 2024 क्रिसमस को फिर पापा जी ने प्रेयर की बच्चों के लिए कि जिन बहनों को बेबीज नहीं है वो अपने पेट पे हाथ रखे। और मैंने पेट पे हाथ रखा, मुझे उसी टाइम पीरियड्स आ गए, और वो जो खून पानी की गांठ थी वो साफ हो गई, वो अपने आप बाहर निकल गई थी। हाँ जी। जबकि उसका ऑपरेशन करके बाहर निकालना था, लेकिन प्रेयर हुई और अपने आप वो गुप्तांग के जरिए से बाहर आ गई। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर जनवरी में मैं अपने गांव गई, और फिर मार्च में मुझे बेबी कंसीव हो गया पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। हाँ जी। कितनी खुशी थी देख के इसको? बहुत सारी खुशी थी कि परमेश्वर ने हमें एक बेबी से ब्लेस किया, और हमने अपने परिवार को भी बताया कि हमारे परमेश्वर हम सबको ब्लेस करेंगे। बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीष किया आपको। हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। सब उस जीवित खुदाबंद के नाम को महिमा दें।
मैनू यसू दियां रखा मैनू कादी परेशानी मैनू यसू दियां रखा मैनू कादी परेशानी मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी मैनू यसू दियां रखा मैनू कादी परेशानी मैनू यसू दियां रखा मैनू कादी परेशानी यस फिर से एक बार मैनू यसू दियां रखा